It's a story of a guy called Jatin, how he became Jatil, and again how he chose to become Jatin at the end. वो फेयर एंड लवली का आइडिया किसका था? बता दूं नवाज भाई? प्लीज प्लीज बताइए. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. This is a very for a thriller. It has a very poetic name. Raat Akeli Hai. Right. And also it's a very popular song. So how did the title came up? It's a homage to Vidyanand Saab, Jewel Thief. So, Okay. But on a serious note, my writer Smita, she only came up with the name of Raat Akeli, and I really like the title because when you see the film very closely, amongst all these characters, you see Night playing a character. Yeah. Because night has its own kind of demands, night can be dark also, night can be lonely also, and night is very poetic also. So it's just that night carries a different kind of mood. It depends on each and every individual's perception. Honey, you and Nawaz, I assume you know each other for a long time. Right. So if you can talk about your relationship, your collaborations, So, pehle and now how this came together, this one. to start with, I've been a fan of Nawaz Bhai's work and keep hearing great things about him. I know him because of we both come from theatre. Yeah. And he was in National School of Drama, but later on I have worked very closely with the people, the directors of National School of Drama. So I keep hearing things about Nawaz Bhai, and when I came to Bombay, and oftenly we met also through some scripts or some different kind of reasons. Like we met and we always had this kind of ongoing thing. So it happened to be I did a couple of film casting which happened to be Nawaz Bhai there in those films, like Rais, like Manto, or say Photograph for Ritesh. And so yeah, a kind of mutual respect and understanding was always there. And when I got a chance on the script, and keeping the character Jatil Yadav in mind, and Nawaz Bhai was the most obvious choice for me to go to. And I was scared also. His first film, and I'm just going to Nawaz Bhai, and he was very busy actually on those days. He told me, he asked me, tell me the character in few lines, what you have in mind. So I told him certain things, and which he laughed and he said कि ये तो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें. And that was the kind of first thing where we kind of connected. वो फेयर एंड लवली का आइडिया किसका था? हनी का था. Smita had came up with that thing also. Smita had written a script, and that was the thing. बता दूं नवाज भाई? प्लीज बताइए. तो जब मैंने बताया कि वो इसका तो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्सिटी तो है उनके करियर में, और पर्सनल लाइफ में भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो अपनी मम्मी से चोरी फेयर एंड लवली पे उनको थोड़ा फेथ है, तो वो लगाते हैं कि हो सकता है कि एक दिन एक कयामत का दिन आएगा जब वो बुरे हो जाएंगे. तो नवाज भाई ने बताया कि स्मॉल टाउन वगैरह में जैसा होता है ना, बुध बाजार लगता है या मंगल बाजार लगता है, इस तरीके की चीजें होती हैं. तो नवाज भाई अपने टीन एज में किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो बुध बाजार से वो क्रीम खरीद के लाए थे. तो उसका नाम फेयर एंड लवली नहीं था, उसका कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के साथ फेयर एंड लवली कुछ ऐसे करके नाम हो जाता था, जो कि 2-2.5 रुपए में मिलती थी वो क्रीम. तो वो क्रीम लगाने से क्या होता था, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजर नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो आपकी स्किन पे वाइट होने लगता है. तो वो क्रीम लगा के उस लड़की से मिलने के लिए गए, उसने नवाज भाई को देखा और पहला क्वेश्चन उससे बोला, क्रीम लगा के आए हो? दैट वाज द एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप.
सारे कॉप्स के रोल प्ले किए हैं. So how was Jatil Yadav different for you? जटिल जो है, जैसे जटिल में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं एक्चुअली, सिंस के एट द सेम टाइम बाय प्रोफेशन वो कॉप है और इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका इनर भी अपने अंदर को भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि जिस हायरार्की से, पैट्रियार्की से वो आता है और वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उससे भी उसके इनर वर्ल्ड से भी चल रहा है एक्चुअली. और बाद में एक एक्सेप्टेंस आती है उस चीज को लेकर. जैसे उसने माइंड मेकअप पहले अपने माइंड में बना रखा था कि वाइफ जो है थोड़ी ट्रेडिशनल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, है ना. बाद में बहुत चेंज आता है उसकी लाइफ, उसके खुद के थॉट में भी चेंज आता है. तो ये इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड as compared to other character actually. It was in Reis and कहानी. And मुझे जो बात अच्छी लगी है कैरेक्टर में is the fact that उसको एक सेवियर कॉम्प्लेक्स है. मैं बचा लूंगा, मैं इसका रखवाला बन जाऊंगा. That type of feeling he has. Of course, that goes through a transformation. वो बदलता है. So इसके बारे में अगर if you both can talk about it. See, मैं बताऊं आपको कि कभी-कभी क्या होता था, जब जैसे आप किसी लड़की के साथ आपकी सपोज कोई फ्रेंड है, चाहे बैचमेट है, उस वक्त जब हम लोग एनएसडी में पढ़ते थे, कोई बैचमेट होती थी, तो हमारे पास पैसे तो बहुत कम होते थे, लेकिन जब मैं सपोज कहीं रेस्टोरेंट में हम कुछ खाना वाना खा रहे हैं जाके, चाय वाय पी रहे हैं, तो खासतौर से लड़की को बोलता था मैं कि नहीं, मैं दूंगा पैसा मैं दूंगा. अरे क्यों दोगे तुम? क्योंकि मैं ही देता हूँ, मैं दूंगा. तो लड़की तो बोलती, भाई मैं भी तो दे सकती हूँ. तूने नहीं, मैं दूंगा. तो एक ये होता था ना, जो आप बोल रही हैं कि बचा. मैं जब बाहर हम लोग जब जाते हैं, तो बाहर बिल्कुल उसका, जैसे बाहर भी वही होता है ना कि अगर तू दे रहा तो नेक्स्ट जो मैं कॉफी पिलाऊंगी तो उसका मैं दूंगी पैसा. तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लड़की पैसा दे रही है. क्यों दे रही है भाई? लड़के का काम होता है पैसा देना. तो ये जो चीजें हैं, ये जैसे अब वो सेवियर, वो वाला जो आप बोल रही हैं, वो वही कॉम्प्लेक्स है कि मैं चूंकि मेल हूँ, इसलिए मैं ही बचा सकता हूँ तुझे. अरे भाई, तेरी जरूरत है, वो खुद को भी बचा सकती है ना, क्योंकि वो इतनी मॉडर्न थॉट की है, इतना उसके अंदर सोच है, समझ है, तो वो खुद को भी बचा सकती है. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये भी, अगर देखा जाए. Was there any improvisation on the set और या रिहर्सल होती थी, ऐसा कुछ था? Because this was a fairly big cast. हाँ, रिहर्सल होती थी बाकायदा. कुछ सीन्स, बहुत लंबे सीन्स थे इसमें. Exactly. वेरी लॉन्ग सीन्स. अच्छा, तो और वो रात के 2-2, 3-3 बजे हो रहे हैं. आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट सीन थे इसमें, जिनकी रिहर्सल करना बहुत जरूरी था. और हनी का क्या है कि वो बहुत ही कोरियोग्राफ करते हैं वो लोग के. हनी जो है, जैसे स्टेज पे होता है कि यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ आना है, और वो एक ही शॉट में हो रहा है. उसमें प्रॉपर्टी भी हैंडल कर रहे हैं, चेयर भी खींच रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उसके बाद डायलॉग स्टार्ट हो रहे हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर इधर जाते हैं, दूसरा कैरेक्टर उधर आ रहा है. तो एक लाइक एक जो म्यूजिक होता है, वैसे ही कोरियोग्राफी होती थी सीन्स की. तो हनी के लिए ये बहुत, आई थिंक पहला एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ कि कोरियोग्राफी हो रही है, पूरे सीन्स की चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और एक ही उसमें सारा पूरा का पूरा सीन हो रहा है. उसके लिए ऑफकोर्स रिहर्सल की बहुत जरूरत थी. और चूंकि हनी इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि उन्होंने थिएटर किया है, तो इतनी खूबसूरत कोरियोग्राफी वही इंसान कर सकता है जिसको मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस, क्योंकि थिएटर में इस तरह की कोरियोग्राफी बहुत होती है. और एक कॉम्बिनेशन था रियलिज्म का और कोरियोग्राफी जो वो बिल्कुल थिएटर की तरह हो रही है. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि वो कोरियोग्राफी जो है वो हम लोग थिएटर में ही करते थे. जैसे आजकल सिनेमा में क्या होता है, सामने यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से आ जाओ, हो गया सीन आपका. तो एटलीस्ट हनी के साथ ये मुझे फायदा हुआ कि वो थिएटर के नुआंस से, जो थिएटर की जो क्राफ्ट है, वो भी हमें जानने का मौका मिला, वापस से रिवाइव करने का मौका मिला.